So, our this video is on exercise 32. Okay, exercise 32B. Once again, we are dealing with class 6 and it is on area and perimeter of 2D figures. So, area and perimeter of 2D figures. 2D figures as I had told you in our previous session that 2D means rectangle, it means square, it means a trapezium, a parallelogram. So exercise 32 we shall concentrate mostly on area. Why? Because we had already done perimeter. तो यार एरिया के लिए first try to understand what do you mean by area. For example, if this is a rectangle, and this is, if I color it, let's color it. So actually I am coloring its surface area. I am coloring coloring the surface area of the rectangle. Okay, so we will be finding the area of a rectangle as length into breadth. If this is your length and if this is your breadth, so area will be length into breadth. Now, for example, if my length is 8 meter and my breadth is 5 meter, therefore the area will be equal to L into B. This means 8 meter into 5 meter. तो बेटा जी 8 5s are 40 तो हो गया and meter into meter is equal to meter square. So you will get your result either in meter square या नहीं तो centimeter square या नहीं तो kilometer square. Therefore, remember that while the perimeter is in centimeter, perimeter of a rectangle is equal to 2L plus B. Clear? Perimeter of a rectangle is 2L plus B. अब चलो इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे, इसी से फॉर्मूला बनाएंगे. तो जब लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. अगर पूछा जाएगा फाइंड द लेंथ of the rectangle, so that will be equal to area by breadth. और अगर breadth मांगा जाएगा तो breadth will be equal to area by length. Length को नीचे भेजिए, area by length. So once you if from these three quantities, if any two of them are given, you can find out the third one. कोई दिक्कत नहीं. Example 1. So example 1 says that the length of a rectangle is equal to 15 centimeter and its breadth is equal to 6.4 centimeter. तो मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब पूछिएगा क्यों प्रॉब्लम नहीं है? इसलिए बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव द सेम यूनिट. तो जब सेम यूनिट है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. वैल्यू पुट कीजिए, 15 टाइम्स 6.4 इज इक्वल टू 15 टाइम्स 6.4. So 15 times 6.4 is equal to your 96 centimeter square, because this is centimeter and this is centimeter. So centimeter square. Clear? Similarly, let's come to the next one. So next one, instead of doing number 2, I will be doing number 1, third one, isn't it? The third one. Third one says that the length is equal to your 3.6 meter or breadth is given as 90 centimeter. Since we have two different units over here, अलग अलग यूनिट है, isn't it? तो जब अलग अलग यूनिट है तो आपको करना क्या है? You will have to convert them into the same unit. So it is better, it is advised, or it is advisable that you convert centimeter to meter. मीटर को भी सेंटीमीटर में कर सकते हैं, बट
but where you can where a value is given such that it is nearest to the other one, the bigger quantity, तो आप उसको वही वैल्यू में कर सकते हैं. तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? यू शुड नो दैट यू शुड नो द मेट्रिक सिस्टम. और ये मेट्रिक सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि पहले मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर. तो ये तो जानना ही जानना है, अदरवाइज यू कैन नॉट कन्वर्ट. From top to bottom you people can see that the value is increasing. तो जब छोटा क्वांटिटी को मैं बड़ा क्वांटिटी में कन्वर्ट करूँगा, छोटा क्वांटिटी को अगर बड़ा क्वांटिटी में कन्वर्ट करूँगा तो वी विल हैव टू डिवाइड ओके बाय द नंबर ऑफ टेंस. एंड सिमिलरली व्हेन यू मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब बड़ा क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी, सो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई. तो यहाँ देख रहे हैं कि मिलीमीटर सेंटीमीटर से मीटर जाना है. सो 2 स्टेप्स, 1 स्टेप 2 स्टेप मीन्स 2 zeros. क्या करेंगे? 2 zeros से डिवाइड करेंगे. दिस मीन्स दिस बिकम्स योर 90 by 100 इज इक्वल टू पॉइंट, देखो 0 0 कटा, 0.9 meter. So once you have got both the values in the same unit, ये वाला भी मीटर में, ये वाला भी मीटर में, therefore area will be equal to L into B. L into B means 3.6 into 0.9. So 3.6 into 0.9 will be equal to how much? This will give you how much? 9 6 are 54, 9 3 are 27 kilo. 3.24 meter square. Clear? Moving on to the next one, that is number 4. We should do number 4 also. Why? Because see, actually you people are in 6. तो 6 का बच्चा लोग जो होता है ना, पानी होता है. पानी क्या होता है? पानी होता है. Okay, means until and unless you remove all the dust from their brain, you cannot sharpen them, you cannot clean them. Let's come to number 4. So in number 4 same thing है, where you have been given length of a rectangle as 24 centimeter and the breadth is equal to 180 millimeter. देखो यहाँ फिर नाटक हो गया. तो एक काम करते हैं फिर से, मिलीमीटर, centimeter, decimeter. So from millimeter, if you are converting from millimeter to centimeter, okay, if you are converting from millimeter to centimeter, then in that case बेटा जी आप लोग देख सकते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में means from smaller unit to bigger unit. तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. डिवाइड बाय 10. Okay, come here. So this will be equal to 180 divided by 10. So this will get converted to 18 centimeter. So what will be the area? So your area will be equal to L into B, which is equal to 24 centimeter into 18 centimeter. तो मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग खुद कीजिएगा. आई नो यू पीपल आर वेरी वेरी क्लेवर, इजंट इट? 432 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ना. अब रेक्टेंगल का काम खत्म, अब आएंगे स्क्वायर आएंगे. नेक्स्ट दैट इज इन नंबर 2 विल कम टू स्क्वायर. तो स्क्वायर में आप लोग जानते ही हैं कि स्क्वायर इज अ फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स which are equal. So bounded by 4 equal sides. मतलब ये वाला भी A, ये वाला भी A. तो अच्छा एक मिनट, before I tell you the area of a square, do you remember the area of a rectangle? अभी ना बताएं कि area of a rectangle is equal to length into breadth. So in the same way the area of a square will be equal to A into A. This is your length, this is your breadth.
या नहीं तो ये वाला लेंथ, ये वाला ब्रेथ, एरिया इक्वल टू ए इंटू ए. सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए क्या है? ए इज साइड. So you can say that area is equal to side into side. Side into side. Area of a square, अभी यही सीखेंगे. Area of a square is equal to side into side. और area of a rectangle is equal to length into breadth. Very simple, isn't it? यहाँ से क्या, यहाँ से कुछ नहीं. Do you remember the perimeter of a square? So perimeter of a square is equal. Perimeter क्या होता है बेटा? Perimeter means sum of all the sides. यानी ए मतलब पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. ठीक है, 4 इंटू साइड. ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a, 4 इंटू साइड. दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. वंस अगेन, पेरीमीटर मीन्स द सम ऑफ ऑल द साइड्स एंड एरिया मीन्स द सरफेस, प्लेन सरफेस bounded plane surface inside, bounded by these straight lines or inside the closed figure. Okay, chalo, let's do few of the sums. For example, number 2 का 1 में आते हैं, where they have given you side of a square. Side of a square is given as 7.2 centimeter. तो साइड ही ना मिलेगा आपको, लेंथ और ब्रेथ तो मिलेगा नहीं. इसलिए नहीं मिलेगा लेंथ और ब्रेथ. क्यों? बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ इन अ स्क्वायर आर इक्वल. सो व्हेन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन, कांट यू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर? एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. कैन यू प्लीज पुट द वैल्यू? 7.2 cm into 7.2 cm. This will be equal to कितना? This will be equal to your 51.84 centimeter square. ठीक है. अच्छा, similarly come to, if you have been given, if you have, for example, एक ठो और बनाएंगे, नहीं एक ठो और बनाएंगे. For example, if they give you, for example they give you 4.5 meter. So sine of a square is equal to 4.5 meter. तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, मीटर है तो मीटर स्क्वायर निकलेगा. क्या जी, है कि नहीं? सो योर एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. ठीक है, इज इक्वल टू साइड इंटू साइड मीन्स क्या? साइड इज इक्वल टू 4.5 मीटर इंटू 4.5 मीटर. तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4.5 इंटू 4.5, इजंट इट? ओके, कुछ 20.25 मीटर स्क्वायर निकलेगा. ठीक. नाउ द लेवल हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग. कुछ तो नया होना चाहिए ना. ओके, दे एवरी टाइम दे कैनॉट गिव यू दैट फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर. हमने पहले भी कहा था कि इफ 3 of the units are given, if area is equal to L into B, so in that case L और B दिया तो बोला बोला एरिया निकालो. अब एरिया और लेंथ देगा तो बोलेगा ब्रेथ निकालो. एरिया ब्रेथ देख के लेंथ निकालो. ठीक है. कमिंग बैक टू नंबर 3, वी हैव इफ A denotes the area of a rectangle. तो कह रहा है कि एरिया ऑफ अ RECT rectangle is equal to A, capital A. ठीक है. L represents the length. So the length of the rectangle is given as your L. ठीक है, L. और B का breadth is equal to B. चलो, ठीक है. They have given you this. अब कह रहा find length if area is equal to 48 centimeter square. Means area is equal to 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. और B भी दिया हुआ है आपका, कह रहा है B 6 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आर बोथ ऑफ देम इन द सेम यूनिट. तो ऑफ कोर्स दे आर इन द सेम यूनिट, सो वी डोंट हैव एनी इशू. तो व्हाट विल बी द लेंथ? सो योर लेंथ विल बी इक्वल टू एरिया बाय ब्रेथ. अभी हमने बताया
length is equal to area by breadth. Area is equal to 48 and your centimeter square. नहीं ये वाला instead of writing over here I'll write the answer, or you can write centimeter square, and breadth is equal to your 6 centimeter. So 6 how many times? 6 8s are 48, और ये सेंटीमीटर एक ठो और ऊपर का सेंटीमीटर एक ठो कट जाएगा. So you will get your length as 8 centimeter. That is why I told you no need to write centimeter square and centimeter over here. डायरेक्ट आप वैल्यू निकालिए और सेंटीमीटर यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं ना तो सेंटीमीटर में ही होगा. अदरवाइज अगेन आई विल हैव टू you will get confused over here. ठीक है, तो नाटक नहीं करना है. Similarly come to 3 का number 2 where they have given you area of a rectangle is equal to 88 meter square और length is equal to 8 meter. तो भैया हमारा B will be equal to area by length. एरिया आप जानते ही हैं 88 मीटर स्क्वायर और लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर. तो इसको कैंसिल करेंगे 8 11 टाइम्स, दैट इज 11 मीटर. और रिमेंबर अगर आपने अगर ये यूनिट अगर नहीं लिखा तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी ऑल्सो. ठीक है, हम भी कुछ नहीं जानता. लेट्स कम टू नंबर 4. एंड इन नंबर 4 व्हाट डू वी हैव? लेट्स सी नंबर 4 में 2-4 सम बनाएंगे, ज़्यादा नहीं. कितना हो रहा है? और 16 मिनट हो रहा है. Each side of a square is equal to 3.6 centimeter. So in number 4, side of a square is given as 3.6 centimeter. कह रहा है कि पहले तो पेरीमीटर ढूंढो भैया. पेरीमीटर कितना है? तो do you know what do you mean by perimeter? It means sum of all the sides. So sum of all the sides मतलब 3.6 plus 3.6 plus 3.6. So perimeter is equal to 4 into side. ज़्यादा ड्रामा नहीं. 4 into side means 4 into 3.6 centimeter. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 14.4 सेंटीमीटर मिलेगा. ये हो गया तो पेरीमीटर. फिर कहता है आप एरिया भी जरा सा निकाल दो बाबू. एरिया, सो एरिया इज इक्वल टू माई साइड इंटू साइड. कुछ नहीं, वैल्यू पुट हम करेंगे ना. हम लोग करेंगे 3.6 सेंटीमीटर इंटू 3.6 सेंटीमीटर. सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू विल गेट अ वैल्यू 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर. बस, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं. Moving on to number 5. And in number 5, what do we have? In 5, we have been given the perimeter of a square. ठीक है, देखो बस कुछ नहीं. ये कोठी का धान उसमें, दूसरे कोठी में, और उस कोठी का धान इस कोठी में. बस यही होगा और कुछ नहीं होगा यार. ठीक है, देखो एरिया अभी ना पढ़े हम लोग. दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का जो पेरीमीटर है इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. ठीक है, तो व्हाट विल बी साइड? देयरफॉर साइड विल बी इक्वल टू ये पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. साइड विल बी इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. मतलब एक साइड कितना है? तो पूरा वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. So here in number 5, they have given you the perimeter of square is equal to 60 meter. तो कह रहा find each side. नंबर 1 में कह रहा है each side निकालिए. तो each side will be equal to perimeter divided by 4. मतलब 60 divided by 4 means 15 meter. नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, चलो अब कह रहा है अब एरिया भी निकालो. फाइंड एरिया ऑल्सो. सो फाइंड एरिया. तो एरिया इज इक्वल टू योर साइड इंटू साइड टाइम्स साइड. सो साइड टाइम्स साइड मीन्स 15 मीटर इंटू 15 मीटर will be equal to
225 मीटर स्क्वायर। ठीक। अब कह रहा है नंबर 2 में थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड इट्स न्यू एरिया। अच्छा, न्यू एरिया जरा सा ढूंढिए। तो भैया न्यू एरिया के लिए न्यू साइड भी तो होना चाहिए। नया एरिया है, इससे खुशी नहीं मिला ये वाला से। किससे? 225 मीटर से खुशी नहीं मिला। बोला कि न्यू एरिया निकालिए, तो न्यू साइड होना चाहिए हमारा। तो कह रहा है कि न्यू साइड भी हम बता दे रहे हैं आपको। न्यू साइड ई हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर। कह रहा है इट्स न्यू एरिया ऑब्टेन्ड ऑन इंक्रीजिंग दिस साइड बाय 2 मीटर। मतलब न्यू एरिया कह रहा है, न्यू साइड कह रहा है कि ये 15 मीटर में 2 मीटर और जोड़ दीजिए, यही वही आपका न्यू साइड हो गया। तो कोई बात नहीं है, 17 मीटर। जब सब काम आप पूरा कर ही दिए हैं तो हमें आंसर ही ना निकालना है, और क्या है। सो न्यू एरिया विल बी इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मतलब 17 मीटर इंटू 17 मीटर विल बी इक्वल टू 289 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार लाइफ में। ठीक है, अगर फार्मूला 7 हो तो ठीक है। और फार्मूला 7 कहाँ? 7 मीन्स until if you learn the formula properly. Coming back to question number 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। Each side of a square is 7 meter. So they have given you the side of a square. Side of square is equal to 7 meter. बहुत अच्छा। तो once you have got the side of a square, तो दिमाग में क्या आ रहा होगा कि पेरीमीटर निकाल लेंगे, 4 इंटू साइड करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, साइड इंटू साइड करेंगे। ठीक। इफ ईच साइड हैज बीन इंक्रीज बाय 3 मीटर, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन एरिया? तो कह रहा रुको यार, पहले दिमाग में चटो नहीं। एक काम करते हैं कि लेट अस फाइंड द ओरिजिनल एरिया। ठीक है, ओरिजिनल एरिया। तो ओरिजिनल एरिया बेटा जी 7 मीटर इंटू 7 मीटर इज इक्वल टू 49 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका ओरिजिनल एरिया हो गया। ठीक। नाउ व्हाट आर दे सेइंग? कह रहा इफ साइड इज इंक्रीज्ड बाय क्या? इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर। तो इफ साइड इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर तो नया साइड निकलेगा, न्यू साइड। सो न्यू साइड विल बी इक्वल टू पहले वाला 7 मीटर और फिर 3 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो जब नया साइड है तो नया एरिया भी होगा, न्यू एरिया। सो न्यू एरिया इज इक्वल टू योर 10 मीटर इंटू 10 मीटर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर न्यू एरिया हो गया। ठीक। व्हाट आर दे आस्किंग? दे आर आस्किंग यू दैट इंक्रीज इन एरिया निकालिए। इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया मतलब कितना एरिया बढ़ा, इंक्रीज इन एरिया। तो ठीक है, पहले वाला 100 था, अब इस बार 100 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। और पुराना वाला वाज 49 मीटर स्क्वायर। सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 51 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर इंक्रीज इन एरिया, दिस इज योर इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलो, आना भी चाहिए भाई, आना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर कोई काम है ही नहीं। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। However, I am very happy with your comments. Okay, except 1 or 2. देखो यार, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन अनाप शनाप कमेंट मत किया करो। It's very very simple. I'm not forcing anyone कि नहीं you will have to go through these videos. I'm just trying to make your work easy. Okay. Number 7. काम सोच रहे हैं कि हर का भलाई हो, जो ऑनलाइन आया उसका भी, जो ऑफलाइन रहा उसका भी। The perimeter of a square field is numerically equal to its area. देखो कितना हार्ड लैंग्वेज बोल दिया। क्या बोल रहा है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पहले समझो यार,
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इट्स एरिया, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। उसने ये कह दिया, तब मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ पे फॉर्मूला को फीड करें। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक, और एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी हो, साइड, दे हैव नॉट गिवन द साइड, सो साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड। अब देखिए भाई, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये साइड और ये साइड कैंसिल हो जाएगा? तो जब कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो साइड आपका यहाँ देखो इक्वल टू रखो, यहाँ पे इसे, ये वाला साइड इज इक्वल टू 4, सिंपल। तो ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, कोई, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन यू मीटर सेंटीमीटर या कुछ भी, तो साइड इक्वल टू 4। अब सोच सकते हो हाउ इजिली यू हैव डन दिस विदाउट यूजिंग इनफ ऑफ योर ब्रेन, ठीक है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी, क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। अच्छा, अब इससे स्क्वायर स्क्वायर बोलते बोलते मुंह दुख गया, तो अब रेक्टेंगल पे आ गया। तो रेक्टेंगल का फिर से एक बार एक छोटा सा ये फोटो बना लेते हैं, नहीं, हाँ, ले फोटो ले। सो हियर वी हैव लेंथ एंड हियर वी हैव ब्रेथ। सो द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी, याद होगा, और एरिया और पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस बी। और अगर याद है फॉर्मूला ये वाला, अगर लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल तो पेरीमीटर बाय 2 माइनस ब्रेथ, और ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ, और इसका एरिया भी आपको याद ही होगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू l इंटू बी। तो आपके पास में एक फार्मूला है, ये 2 फार्मूला हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेथ का भी आप निकाल सकते हैं, और ये ये चौथा फार्मूला है। सो हियर यू हैव दीज फार्मूलाज एंड वी विल बी एक्सक्लूसिवली यूजिंग दिस। तो नंबर 8 में कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर हैज एरिया, नहीं, तो यहाँ पे बेटा ये एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ विल बी इक्वल टू एरिया बाय ब्रेथ एंड ब्रेथ विल बी इक्वल टू एरिया बाय लेंथ। तो यहाँ पे कह रहा है कि एरिया इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना समय हो गया, ज़्यादा नहीं, दिस इज द लास्ट वन एंड देन वी विल गो टू द रिमेनिंग माइट बी टॉट इन द नेक्स्ट वीडियो। एरिया इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारा लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका पेरीमीटर ढूंढो, तो कह रहा है फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आप जानते ही हैं, पेरीमीटर हो गया आपका ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, जो हमने अभी लिखा। यानी पेरीमीटर ढूंढने के लिए हमें लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए। हियर ओनली लेंथ हैज बीन गिवन, सो फ्रॉम these two datas you can easily find out the breadth of a rectangle. So the breadth of a rectangle is equal to area by length, मतलब 24 by 5। अच्छा, सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वाई, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव द सेम यूनिट्स, isn't it? So 24 by 5, तो 24 by 5 निकालो, when you will divide this you will get 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यू हैव गॉट द ब्रेथ। अब क्या करेंगे, इसमें फीड अप देंगे, इसमें फीड करेंगे। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू कितना, एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि 2 ट्वाइस 5 4 9 9.8। so you will get your value as 19.6 सेंटीमीटर। आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं, यानी आप लेंथ निकाल रहे हैं, isn't it? पाथ नहीं निकाल रहे हैं, तो पाथ will always be in centimeter. So you have finally found your answer. Clear? Okay. Moving on to the next number 9। अच्छा, एक दो बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इतना जल्दी जल्दी बन रहा है तो फिर why to delay? Number 9. So in number 9 we have the perimeter of a rectangle whose area equal to 2600 meter square। तो कह रहा है कि पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल जो है आप ढूंढिए क्या होगा। तो क्या होगा, ऑर्बिट कुछ दोगे। सो एरिया हैज बीन गिवन एज 2600 मीटर स्क्वायर एंड दे हैव ऑल्सो गिवन यू द ब्रेथ एज 50 मीटर। तो भैया मोरे लेंथ विल बी इक्वल टू एरिया बाय ब्रेथ, मतलब 2600 बाई 50। तो 2600 बाई 50 विल बी इक्वल टू हाउ मच। देखो दिस विल बी इक्वल टू योर 52 सेंटी 52 let me see, yes, 52 meter, 52 meter, clear? So the length is equal to 52 meter. So when length is equal to 52 meter, can't you find the perimeter of a rectangle which is equal to twice L plus B? Just you have to feed the value. तो length कितना 52 meter and breadth is equal to your 50 meter. So this is equal to 2 5 5 10 102 मीटर will be equal to 204 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। तो बेटा एक ठो बना ही लेते हैं नंबर 10, ठीक है ना, नहीं तो पेज बर्बाद हो जाएगा। What will happen to the area of a rectangle if the length and breadth both are trebled? तो कह रहा एक काम करो यार, दिमाग का दही बना दिया ये लोग। कह रहा कि एक ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑल्सो एंड रेक्टेंगल हैज बी ऑल्सो। तो रुको पहले इसका एरिया निकालने दो। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इंटू बी का मतलब एल बी, ठीक। चलो कह रहा अगर इफ ना, इफ लेंथ इज इक्वल टू, इफ ये नया वाला जो लेंथ है, नया वाला लेंथ इफ लेंथ इज इक्वल टू 3L ट्रिबल्ड, TRE, एक मिनट लिखने दो, BLED ट्रिबल्ड, नॉट ट्रबल्ड ठीक है, ये ट्रबल जो है ट्रिबल्ड से कम नहीं है। हाँ, सो दिस ट्रिबल्ड मीन्स 3 टाइम्स, ट्रिबल मीन्स 3 टाइम्स, डबल 2 टाइम्स। तो कह रहा लेंथ अगर ट्रिबल कर दिया जाए और ब्रेथ भी ट्रिबल कर दिया जाए 3B, तो कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू कैन से न्यू रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू, वही अब न्यू रहे चाहे ओल्ड रहे, दैट विल बी इक्वल टू योर L इंटू बी ओनली, नया वाला L नया वाला B इज इक्वल टू 3L इंटू 3B। तो एक काम किया जाए कि यहाँ पर L नहीं लिख के, छोटा L नहीं लिख के कैपिटल L लिखा जाए और ये कैपिटल B लिखा जाए, ठीक है, क्योंकि बड़ा भाई है ना, देखो ना ये बड़ा भाई, द वैल्यू इज मोर, दैट इज वाई कैपिटल लेटर। तो इज इक्वल टू 3 3 9 LB। अब बोलोगे सर आप लाल से क्यों लिखे हैं, वाई डिड यू राइट इन रेड। तो व्हाट वाज LB? LB वाज ओरिजिनल एरिया। तो हम ये बोलेंगे कि व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ हैज बीन ट्रिबल्ड देन द न्यू एरिया विल बिकम 9 टाइम्स ओरिजिनल एरिया। सो न्यू एरिया यहाँ लिखते हैं, न्यू एरिया will be equal to 9 times original area, बस AREA, समझ गया ना, भावना समझो, भावना, ठीक है। ओके, सो आई होप up till here the concept is damn clear, so please keep on revising, ठीक है, रिवाइजिंग। तो यार मन करे तभी पढ़ो, लेकिन अनाप शनाप कुछ बोलना नहीं, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो।